Okay, so yesterday we have discussed armature reaction. Okay, what is the armature reaction? It is the effect of armature flux on a main field flux. So everybody knows this basic concept that there are a main field flux which is been generated with the help of poles that are nothing but phi f. This phi f are getting linked with the armature conductor. D phi by dt takes place, and EPH will induced inside the conductor. Now, this phi f and EPH, they're having a phase difference of 90 degree. EPH is always lagging by phi f with the 90 degree as shown in the figure. So whenever you are talking about zero lagging power factor means your load is purely inductive type of load. So whenever you have purely inductive type of load, then your voltage and current, your current is always lagging the voltage by 90 degree as shown in figure. So this will be the direction of your current. And because of this current, this fluxes will come into the picture, which is phi A, armature flux. They are again in the same phase with the IA. So from this figure, when you are Good morning, having a ma'am. zero lagging power factor, good morning. Am I audible, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So whenever you are having a zero lagging power factor, that time your phi f and phi a both are in opposite direction. So there will be the cancelling of flux. Okay, and this effect is called as demagnetization effect. Total overall system flux जो है वो क्या हो जाता है? They are getting subtracted, and because of that terminal voltages get reduced. Okay, so this is called as demagnetizing effect. देन अगर तुम लोग कैपेसिटिव लोड लोगे तो कैपेसिटिव लोड में देखो फिगर इज टॉकिंग एवरीथिंग. दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपीएच को लीड करेगा करंट अभी बाय 90 डिग्री. सो करंट एंड फाई एफ विल बी इन द सेम डायरेक्शन and so as your phi a. So in this figure you are observing this phi f and phi a both are in the same direction, so they will helping each other, they will add up. So here overall system flux is getting increased, not reduced, and hence your terminal voltage will increase. This effect is called as the magnetizing effect. Okay, so these three cases we have seen when you have a unity power factor, zero lagging power factor, zero leading power factor. Then we have discussed finally armature reaction reactance. तो ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ ना कुछ सिस्टम में ड्रॉप होता है. मतलब ड्रॉप कैसे होगा? वोल्टेज चेंज हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो रहा है. तो सिस्टम में टर्मिनल वोल्टेज चेंज कब होता है? जब कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है ना सिस्टम में. सो दिस ड्रॉप, this resistance which is responsible for the terminal voltage drop due to armature reaction, we account it as a armature reaction reactance. Okay, so in all, now there are two types of reactances in the system. First one is XL, which is a leakage reactance, जो अथर्वो को याद था सिर्फ, है ना. तो एक तो लीकेज रिएक्टेंस है ही जो एयर गैप में वगैरह फ्लक्स जाने वाले, और दूसरा रिएक्टेंस कौन सा होने वाला है? दिस इज XAR. So total reactance of the system, which is called as the synchronous reactance, and impedance. Impedance पता है, कल हमने डिस्कस किया. impedance is Z. Synchronous Yes, reactance is XS. XS is the sum of, see, it is the sum of the armature reaction reactance and the and leakage reactance. इन दोनों चीजों की सम XL और XAR. XL हमने कल डिस्कस किया. XL क्या है? लीकेज रिएक्टेंस है. XAR क्या है? जो अभी देखा आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस है. दोनों के एडिशन करोगे तुमको एक्सेस मिलेगा, विच इज नथिंग बट योर सिंक्रोनस रिएक्टेंस. उसके आगे जाओगे इम्पीडेंस. एवरीबॉडी नो नाउ व्हाट इज इम्पीडेंस? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज इम्पीडेंस?
Yesterday only we have discussed. Addition of R and X. Ma'am, impedance is the total leakage by capacitive and react and inductive and resistive combined loss. Yes, impedance Z is equals to R plus JX, है ना? Yes. Yes. ठीक है, तो इम्पिडेंस देखते हैं अभी. इम्पिडेंस ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइनिंग पर फेज वैल्यू ऑफ एक्सेस एंड आर ए. सो ZS सिंक्रोनस के बारे में बात करें, सो ZS इज इक्वल्स टू RA plus JXS. What is XS? XS is the addition of XL and XAR. And this is a kind of resistance only. Impedance, reactance, ये सारे resistances है. सिर्फ ये किसके केस में आते हैं? ये AC के केस में आते हैं, क्योंकि AC में फ्रीक्वेंसी रहती है. ठीक है, so ZS Yes, is equals to RA plus JXS ओहम पर फेज. पर फेज के बारे में बात करें, एक फेज का. 3 फेज का निकालने को बोलोगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा. देन इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ZS mod of this sign is of mod of, है ना? mod of ZS is equals to square root of RA square plus XS square. ठीक है, everybody is clear with this concept of synchronous impedance ZS? Yes, ma'am. Synchronous reactance XS, XAR, XL, what is R, X, Z, देन X के 2 टाइप्स है, XL एंड XC. ये सब कल डिस्कस किया. ठीक है, I will share a notes today. Give me reminder, Govind. The next is equivalent circuit of an alternator. Now we have to draw the equivalent circuit of an alternator. Equivalent circuit मतलब क्या कि जो कुछ भी वाइंडिंग है अल्टरनेटर में, we have to draw it on a on a paper. तो देखो अभी इस सर्किट में तुम ऑब्जर्व करो. हाँ, 3 ड्रॉप्स होने वाले. एक तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा जो इंडक्टिव मतलब कॉइल में होगा, तो ऐसे डिनोट किया XAR. एक तो लीकेज रिएक्टेंस है XL, एंड दूसरा वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है RA. तो दिस 3 ड्रॉप्स आर देयर व्हिच यू हैव टू शो एट एनी कॉस्ट. देन दिस इज योर जनरेटेड EPH. ये तुम्हारा यहाँ पे आर्मेचर है, कंसिडर करो. यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? EPH जनरेट हुआ. अभी इस EPH को ये सारे लॉसेस ओवरकम करने पड़ेंगे. ये सारे लॉसेस को ओवरकम करके टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा? VT आ जाएगा. सो दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज VT, एंड फाइनली at this terminal voltage VT your load is connected. Suppose you have generated for 400 volts. कितना जनरेशन किया? EPH कितना है? 400 वोल्ट्स है. XAR में ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट का, XL में ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट का, RA में ड्रॉप हो गया सपोज 4 वोल्ट का. 4 plus 4 plus 4 it will be 12, right? So 400 minus 12 Yes. करोगे तो कितना आता है? 388. 388. तो जो VT रहेगा तुम्हारा वो रहेगा 388. समझा क्या अभी? Yes, ma'am. Yes. और फिर इन दोनों की एडिशन, इस सर्किट को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हमको पता है द एडिशन ऑफ XAR plus XL is nothing but the XS, synchronous reactance. So इन दोनों को ऐड करके और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओ, XS बना दो इसको. EPH, XS, RA, यहाँ पे लोड है, ये VT है, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट सर्किट. कि सिस्टम में क्या हो रहा है इस सर्किट को देख के तुमको समझना चाहिए कि हाँ चलो ये है आर्मेचर रिएक्शन का ये ड्रॉप है, लीकेज रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, एंड द थिंग्स.
देन फिर नीचे तुम स्टेट करोगे व्हाट इज ईपीएच. ईपीएच इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज ऑन नो लोड. सिस्टम पे अभी लोड नहीं है सपोज. द VT, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज पर फेज ऑन लोड. देन IAPH, आर्मेचर करंट. ZS, सिंक्रोनस इंपेडेंस पर फेज. और EPH इज इक्वल्स टू, देखो इसमें से ही फॉर्मूला निकलता है. EPH इज इक्वल्स टू VT प्लस IAZS. ये जो EPH है ना, इट विल बी द एडिशन ऑफ ऑल दिस ड्रॉप्स प्लस VTH, जो मैंने तुमको समझाया ना. अगर ये 400 है, ये 444 है, तो ये कितना होना चाहिए? 3 क्या बोला था रे? 88, हाँ 388. हाँ, जो कुछ भी 380. ठीक है. सो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है? EPH इज इक्वल्स टू VT प्लस ऑल दिस, एडिशन ऑफ ऑल दिस. सो दैट फॉर्मूला ओनली दे हैव गिवन. हो गया, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर में. ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं. क्लियर है एवरीबॉडी? Yes, नाउ sir. नेक्स्ट इज वोल्टेज इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर. वोल्टेज इक्वेशन तो तुम ऑब्जर्व करके ही तुम बता सकते हो. वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखोगे? EPH बार. अभी ये सारी AC क्वांटिटीज है, तो बार देना तुमको इंपॉर्टेंट है. EPH बार इज इक्वल्स टू VPH बार प्लस IARA प्लस IAXS. कैसे आया? समझा के समझाऊ मैं इसको? ये इक्वेशन समझा दो मैम. एक्सप्लेन करना है. ये ऊपर का ही तो इक्वेशन है. दिस इक्वेशन ओनली है कि नहीं? whatever generated EMF is there, this is generated EMF ना. ये generated EMF टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पे हमको मिलने वाला है, बट उसको क्या क्या ओवरकम करना पड़ेगा? इसको ये सारे लॉसेस ओवरकम करने पड़ेंगे. हमने देखा ना ऊपर, आर्मेचर रिएक्शन के कारण थोड़ा बहुत टर्मिनल वोल्टेज कम होता है या ज्यादा होता है. एक्सेल के कारण थोड़ा टर्मिनल वोल्टेज कम ज्यादा होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस ड्रॉप भी है. तो ये EPH को इन सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होके फिर ये यहाँ पे हमको मिलने वाला है वोल्टेज. तो इक्वेशन कैसे बनेगा? EPH इज इक्वल्स टू, इसमें से करंट जाएगा तभी वोल्टेज ड्रॉप होगा ना. वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या? यस, व्हाट विच करंट इज गोइंग? IA. सो IAXAR, ये ड्रॉप यहाँ पे हो गया. हाउ मच वोल्टेज इज गेटिंग ड्रॉप्ड ओवर हियर? voltage is equals to V into R. हम voltage is equals to I into R. ये करंट IA into रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? XAR. यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया IAXAR. यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया IAXL. यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? IARA. समझ रहे हो बात को मेरी? ये सारे ड्रॉप्स होके फिर यहाँ पे हमको VT मिलेगा. EPH is equals to IAXAR plus IAXL plus IARA plus VT. This will be the equation. और अगर तुमको इन दोनों को कम करना है, एक्सेस के फॉर्म में डालना है, तो इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा? EPH बार इज इक्वल्स टू IAXS प्लस IARA प्लस VT. वही है क्या? देखो VT यहाँ पे VPH बोला है. ठीक है. जैसे हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, और हम लोग वोल्टेज, ये हम लोग DC के बारे में बात कर रहे हैं. एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी ना? Yes, ma'am. Yes, we are giving 40 volt here. How much? 40 volt, right? Positive, negative. और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सपोज इसकी है 2 ओहम. ये रैंडम एग्जांपल ले रही हूं मैं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है. ये भी 2 ओहम है, ये भी 2 ओहम है. और because of this 40 volt, current is passing from this circuit is again suppose 2 amperes. Okay, can anybody tell me how much drop? 2 amperes, huh? How much drop is taking place at R1?
How much drop is taking place at R2 and at R3? कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना R1 के पास. कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग? आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो फटाफट नहीं बोलो, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आगे चलेंगे. आवाज आ रहा है मेरा सबसे पहले? यस मैम. यस. तो हमको देखो यहां से करंट जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस किया तो वोल्टेज आ जाता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. दिस करंट आई सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये सर्किट, तो सब में से फ्लो होने वाला करंट सेम रहेगा. आई R1 आ जाएगा, V1 बोलेंगे. The voltage drop at first resistance is V1, which is equals to IR1, which is equals to how much? 2 into 2, right? बराबर है ना, करंट भी 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 है, तो 2 into 2 इट विल बी 4 वोल्ट्स. तो 4 वोल्ट्स वोल्टेज ड्रॉप करेगा ये रेजिस्टेंस R1. और रेजिस्टेंस मतलब क्या रहता है? इट इज एनी डिवाइस, सपोज बल्ब है, फैन है, टीवी है, कुछ भी है. बल्ब लेते हैं, रेजिस्टिव लोड बोला ना. तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 4 वोल्ट. तो कहने का क्या मतलब है, अगर 400 वोल्ट दे रहे हो तुम लोग, तो 4 वोल्ट ये बल्ब लेने वाला है. ओके. फिर ये नेक्स्ट बल्ब के लिए कितना बचता है? 40 माइनस 4 विल बी 36. यहाँ पे आने वाला वोल्टेज होगा 36. ड्रॉप हो गया ना इधर. 36 में से फिर से इसकी वैल्यू 2 है, करंट भी 2 है, 2 into 2 4. अगेन 36 माइनस 4. समझ में आ रहा है? 36 माइनस 4. तो यहाँ थर्ड लैंप तक आने वाला वोल्टेज कितना रहेगा? 32 वोल्ट्स. इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप होना. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लोग कोई भी चीजें लगाते हैं, तब लास्ट एलिमेंट तक तो वोल्टेज जीरो ही हो जाएगा ना. ऐसे तुम कंसिडर करो, देयर आर n नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड, और जो लास्ट का जो डिवाइस रहेगा, लास्ट का जो लैंप रहेगा, उस पे अभी ये देखो 32 है, फिर 28 होगा, फिर 24 होगा, ऐसे कर करके लास्ट लैंप तक तो 0 वोल्ट हो जाएगा. तो लास्ट वाला लैंप तो जलेगा ही नहीं हमारा, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? तो इसीलिए कभी भी हम लोग कोई भी चीजें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं करते, हम लोग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट. हमारे जो सारे डिवाइसेस होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं. क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस इज सेम. इफ यू हैव ऑब्जर्व, वोल्टेज चेंज नहीं होता, करंट चेंज होता है. So that's why all the devices at our house are connected in a parallel fashion, not in series fashion. और ड्रॉप के बारे में समझा, ड्रॉप कैसे निकालते हैं हम लोग? Yes, ma'am. दिस इज योर Yes, ma'am. EPH. हाँ, दिस इज योर EPH. अभी इस EPH को ये 2-3 ड्रॉप्स ओवरकम करने. कौन से 2-3 ड्रॉप्स हमारे इसमें? ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड फिर टर्मिनल पे हमको ये वोल्टेज मिलेगा, दैट इज VT. सो इक्वेशन देख के ही समझता है. EPH इज इक्वल्स टू VT प्लस IAXAR, IAXL, IARA. Okay. This is the voltage equation of an alternator. Phasor diagram of an loaded alternator. Phasor diagram draw करना है अभी हमको. हमारे पास वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज VPH है, हमारे पास इंड्यूस्ड EMF EPH है, हमारे पास IARA है, हमारे पास IAXS है. इन सब का यूज करके हमको क्या ड्रॉ करना है? फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है. फर्स्ट केस इज लैगिंग पावर फैक्टर लोड. नाउ हाउ टू ड्रॉ? सी एंड लिसन वेरी केयरफुली. नाउ in this diagram we have to take current as a reference. जो आर्मेचर करंट रहने वाला है उसको तुम क्या करोगे? रेफरेंस लोगे as this on this line. मैंने क्या बोला? लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए. तो करंट इज ऑलवेज लैगिंग टू वोल्टेज.
तो वोल्टेज तुम्हारा लीड करना चाहिए, वोल्टेज तुम्हारा क्या करेगा, लीड करेगा। तो देखो दिस इज योर VPH विच इज लीडिंग द करंट, करंट को लीड कर रहा है, ऊपर ड्रॉ किया। नाउ जो भी लॉसेस होता है, अभी देखो VPH में ऐड होने वाला है, VPH में कौन ऐड होने वाला है, IA ऐड होने वाला है। दिस लाइन इज ऑफ IA, दिस लाइन इज ऑफ IA एक्सेस, एंड देन इन दोनों का कल हमने इंपिडेंस ट्रायंगल देखा ना, IARA IA एक्सेस एंड देन दिस विल बी IAZS, दिस विल बी योर इंपिडेंस ट्रायंगल। And you know the addition of VPH plus this IARA IA axis is nothing but your EPH from this formula. Now how to draw? So don't get confused. I'll draw here again. Now in our system we have armature current, we have terminal voltage VPH, we have induced EMF EPH, then we have resistive losses RA, IARA, reactive losses IA excess. Okay, so we have to take at a reference IA, which is current flowing from armature. Okay, now what I have said, the cases of lagging, लैगिंग की केस है तो ऑब्वियसली वोल्टेज तुम्हारा लीड करेगा करंट से, तो वोल्टेज तुम ऐसा थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करोगे, तो दिस इज योर वोल्टेज फेजर V, और VPH बोलो, VPH चाहे VT सेम ही है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज है पर फेज। उसके बाद जो रेजिस्टिव ड्रॉप होता है, रेजिस्टिव ड्रॉप, इट इज ऑलवेज इन फेज विद द करंट, रेजिस्टिव ड्रॉप हमेशा करंट के फेज में रहता है। तो करंट ऐसा जा रहा है ना सामने, तो रेजिस्टिव ड्रॉप भी ऐसे ही जाएगा सामने। दिस इज योर रेजिस्टिव ड्रॉप विच इज टर्म्ड एज IARA, पहला ड्रॉप ड्रॉ किया हम लोगों ने। ओके, और रेजिस्टिव ड्रॉप के 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहता है रिएक्टिव ड्रॉप्स, reactive drop which we can draw like this. This is your reactive drop, IA excess, और इन दोनों की एडिशन इज नथिंग बट द, इन दोनों की एडिशन करोगे तो क्या मिलता है तुमको, IAZS, राइट, और दिस इज योर VPH, IARA, IA excess, ये सबको एक साथ अगर जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलता है, तुमको मिलता है तुम्हारा इंड्यूस्ड EMF which is nothing but the EPH. This is your induced EMF EPH. इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर, लोडेड अल्टरनेटर when the case is lagging power factor. Everybody is with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Yes. एक बार नोट्स में देखते थे। See, this is only, then we have to find out now these values. OD क्या है, DE क्या है, AD क्या है, this everything. So we are doing some geometry. Like see, A to B represent कर रहा है IARA. इसको नीचे पर प्रोजेक्ट करो on IA, so AB will equals to DE, AD will be equal to BE. Then ये जो लाइन है B to C, यहाँ से यहाँ तक B to C, it is representing IA axis. This hypotenuse AC is representing IAZS. This is our EPH. This is your angle phi, है ना? The angle between voltage and current, the phase difference between voltage and current is phi, cos phi है ये हमारा.
So from this figure, now we have to apply geometry. ये सब देख लो, ये अभी explain. OD, O to D, यहाँ तक का distance. This is VPH cos phi. आता है क्या रे VPH cos phi? Cos of apply करो, cos of phi, cos of theta क्या होता है? I think so, adjacent upon hypo, है ना? Adjacent upon hypo. Yeah. तो OD is equals to क्या हो जाएगा तुम्हारा VPH cos phi. Similarly AD is equals to क्या हो जाएगा? AD में हम लोग यहाँ पे sin phi डालते हैं. Sin phi क्या है? Opposite upon hypo है ना? तो AD by VPH हो जाएगा. So AD is equals to VPH sin phi, right? And what is your DE? DE यहाँ से यहाँ तक का distance. This D. D is nothing but the AB, which is IARA. D is equals to IARA. So from this, see, from triangle OCE, OCE, ये in this big triangle we have to see. हाँ? Apply Pythagoras only, है ना? OC square is equals to OE square plus CE square. What is the OC square? OC square ये बड़ा EPH. This is EPH square. What is OE? देखो O to E सब कुछ डायग्राम से चल रहा है. What is O to E? OE is the addition of OD plus DE. So put here OD plus D whole bracket square. What is C? C is the addition of EB and BC. Put this value there. Then you know what is OD. देखो यहाँ पे VPH cos phi. What is D? D is IARA square. What is EB? EB is your where is EB? Yes, EB is your VPH sin phi. What is BC? BC is IX square. Okay, and then this is EPH square. Now I want EPH, so take a square root on both the sides. So this whole thing will go under the square root. बस खत्म हो गया. समझा तुमको? ज्यादा थियरी लिखने की जरूरत नहीं है. मैथ्स है, पूरा मैथ्स. सिर्फ ये डायग्राम समझना चाहिए. How to draw this diagram. Everybody is with me so far? Yes, ma'am. Very Yes, ma'am. Very good. Now we have seen this for the lagging power factor. Now we have to see for a leading power factor, right? So same. फिर से voltage क्या होने वाला है तुम्हारा? Your voltage will be on the reference axis. Voltage, sorry, voltage. Yes, ma'am. Will be on the reference. Your current. Voltage is the reference पे होगा. Current lead होगा. नहीं, हम लोग देखो रेफरेंस पे वोल्टेज भी ले सकते हैं, करंट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग करंट ले रहे हैं. Hriday is talking, right? Okay. See Hriday, here we have taken current on the reference, and that's why voltage is leading. Yes. Current is lagging when we have a lagging power factor. Now we have a leading power factor. लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है? करंट आगे है, वोल्टेज पीछे जाने वाला है. यस, बराबर ना? लीडिंग पावर फैक्टर लोड में करंट इज लीडिंग टू वोल्टेज. सो देखो वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है. सो अगेन सी दिस इज योर करंट IA. उसके पीछे हमको VPH ड्रॉ करना है. अभी VPH तुम ड्रॉ करोगे, देखो हम यहाँ पे ड्रॉ करते इसको पेंट में. टेक करंट, टेक योर करंट रेफरेंस लाइक दिस. लीडिंग पावर फैक्टर है तो वोल्टेज नीचे जाएगा ऐसे. थोड़ा और उसको this will be your VPH. This will be your IA. जैसे इस डायग्राम में V ऊपर था, इस डायग्राम में V नीचे. Now first drop is IARA drop. It will be again in phase with the current. तो करंट ऐसे जा रहा है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये ड्रॉप भी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, which is called as the IARA drop. फिर इसके परपेंडिकुलर IA एक्सेस ड्रॉप.
ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है, इसको बोलेंगे IA एक्सेस ड्रॉप, ठीक है। और फिर इन दोनों का एडिशन इज नथिंग बट वी नो this is IA ZS, right? No, this VPH plus this 2 drop is nothing but our EPH. So this value is our EPH. This is your EPH. So this is the phasor diagram when you have leading power factor. This is the phasor diagram when you have lagging power factor. This is for leading power factor. इसमें देखते हैं, बराबर आया देखो। दिस इज VPH, करंट के फेज में IA आ रहे, उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री अपवर्ड IA एक्सेस, फिर इन दोनों का वेक्टर सम इज नथिंग बट IA ZS, देन ये सब मिला के बनता है EPH। बस सिमिलरली थोड़ा सा अभी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करो, इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो। सो D इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा, यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू EB हो जाएगा। डायग्राम को देख के ही लिखना है ये सब। फिर लिखो यहाँ पे OA क्या है, क्या है OA? OA is VPH, then AB is IARA, BC is B2C, B2C is IA excess, A2C कहाँ गया, A2C is वो IAZS है, OC जो है तुम्हारा that is EPH है। So now from this, again in triangle OCE, in triangle OCE, इस ट्रायंगल में, ठीक है, OCE में मुझे हम इंटरेस्टेड है OC निकालने में, हमको EPH निकालना है कुछ भी करके। तो ये ट्रायंगल लिया हमने इस बार OCE वाला। बाय पाइथागोरस दिस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। व्हाट इज OE? OE में है OD प्लस DE, and what is there in EC? EC is the subtraction of, देखो BE, टोटल दिस BE माइनस BC किया तो हमको क्या मिलेगा, EC मिलेगा। Now put all this value. What is OD? OD is VPH cos phi. What is D? IARA whole bracket square. What is B? B is VPH sin phi. कैसे आया you know? What is BC? IA excess whole bracket square. And then you will got EPH in this case. When your power factor is leading, you will get the minus sign, negative sign. When your power factor is lagging, that time you will get here plus sign. Sign difference is there only, nothing. Okay. So these two cases we have discussed so far, leading and lagging. In the next lecture, we will discuss unity power factor load. Unity power factor पे क्या? Yes, ma'am. Okay. सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very good.